اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنی میں مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل مساوی سانپ میں سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ مدینے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سالہ حکمرانی اسلامی حکومت کے وجود میں آنے کا سبب بنی۔ خلافت ایسا سیاسی لفظ ہے جو آن حضرت کے بعد خلفائے ثلاثہ کی حکومت کے تجربے کے ذریعے وجود میں آیا۔ اس زمانے میں مولا علی علیہ السلام، جو کہ اصل امامت اور ولایت الہی کو پلٹانے کے معتقد تھے، سنت نبوی کو زندہ کرنے کی شرط پر اسلامی خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، لیکن پھر حالات ایسے بدلے کہ بنی امیہ 1000 مہینے سے زیادہ خلافت پر قابض رہی۔ تاریخی شواہد کی بنا پر یہ خلافت پیغمبر اور مولا کائنات کی حکومت داری کے طور طریقوں سے بالکل الگ تھی۔ یہ فاسد اور ظالم خلافت ایک عرصے تک جاری رہنے والی خونی لڑائیوں کے بعد آخر کار 132 ہجری میں ختم ہو گئی، اور بنی عباس نے الرضا من آل محمد یعنی حکومت حضور کی نسل سے ایک پسندیدہ شخص کا حق ہے کے نعرے کے ساتھ ان کی جگہ لے لی، لیکن عملی طور پر یہ حکومت بھی بنی امیہ کی روش پر چلتی رہی۔ اس زمانے میں جغرافیائی لحاظ سے عالم اسلام بحر اطلس سے لے کر چین اور سندھ کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا، جس کی راجدھانی ایک نیا بنایا گیا شہر بغداد تھی، اور پوری اسلامی دنیا سے بے تحاشا ٹیکس بغداد بھیجا جا رہا تھا۔ ملک عراق کے بیچ میں نہر دجلہ کے کنارے عالم اسلام کے نہایت عظیم شہر بغداد واقع ہے، جو عربی و ایرانی تمدن کا حامل ہے۔ 3 ہجری کے شروع میں ہارون کا بیٹا مامون اپنے بھائی امین کا خون بہا کر تخت خلافت پر بیٹھتا ہے۔ وہ 7واں عباسی خلیفہ تھا، جس کو تاریخ میں سب سے زیادہ عقل مند اور چالاک عباسی خلیفہ کہا جاتا تھا، لیکن اس جغرافیائی شان و شوکت کے پیچھے بے تحاشا ظلم و ستم پایا جاتا تھا۔ لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اور جو اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا تھا اسے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ یہ خلافت عظیم ہے تو اس کا محصول بھی عظیم ہونا چاہیے، اور کچھ سالوں سے نہ ہم نے رومیوں سے جنگ کی ہے نہ ترکوں سے، لہٰذا اپنے سپاہیوں کو مجبور کرو کہ محصول کے معاملے میں جتنا ممکن ہو سختی برتیں، تاکہ وقت پر سلطنت کے لیے زیادہ سے زیادہ محصول جمع کر سکیں۔ کوئی بہانے بازی نہیں۔ تمہارے کام کی تفصیل مجھ تک مسلسل پہنچ رہی ہے، اس لیے
किसी भी तरह की खयानत और गफलत के बारे में सोचना भी मत। दफा हो जाओ। मत मारो। तुम्हें मालूम नहीं कि हुकूमत के खुद के भी खर्चे हैं? हमेशा से हुकूमत के ज्यादा खर्चे रहे हैं। आया समझ तुम लोगों के, या समझाऊं? हाँ? अफसोस उन लोगों पर जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पेट भरना हो चुका है। आखिर कब तक सिर्फ मजलूमों की फरियाद सुनते रहोगे? अगर लोग गफलत से काम न लेते तो कब करबला, हिरा और फख्र जैसे दर्दनाक वाकयात अंजाम पजीर हो सकते थे। अल्लाह बचाए गाफिलीन से। अच्छा, तो ये इराक का महसूल है? जी मेरे आका, अगर दकीक हिसाब करके बताऊं तो लगभग 2,78,263 दिरहम बनते हैं इसके मेरे हुजूर। ये हिसाब किसी हद तक बेहतर है। पूरा है या कुछ बाकी है? अगर मुझसे पूछें तो बाकी सिपाही बचे महसूल की वसूली पर गए। जनाबे वजीर हमसे भी। मेरे आका, यकीन मानिए हमारे सिपाही बिना रहम किए पूरी सख्ती बरत रहे हैं। बस मुश्किल यह है कि वसूली में सिर्फ तब्दीली आई है। खुश्क साली के बावजूद मेरे ख्याल से पूरे 236 थैले, और इससे ज्यादा जमा हो भी नहीं सकते। ताज्जुब है वजीर, खुश्क साली में तो ज्यादा जमा किया जा सकता है। पूछो कैसे? गुस्ताखी माफ, मैं भला कौन हो सकता हूं आपसे पूछने वाला। अच्छा ठीक है, अगला दिखाओ। तो ये है मिस्र के महसूल का हिसाब किताब। देखिए, सच कहूं तो 1,16,02,41.9 दिरहम है दकीक मेरे आका मेरे हुजूर। ये तुम्हारा दकीक कहना मुझे बहुत पसंद आया। मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने कारिंदों की अमानतदारी बहुत पसंद है। वाकई आका, आप बाल की खाल निकाल लेते हैं। हमारे वजीर के लिए खाना लेकर। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत? मुझे डर है कि तुम्हारा खाली पेट कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। इनके लिए बेहतरीन और रंगीन दस्तरखान बिछाया जाए, क्योंकि वजीर अगर भूखा हुआ तो महसूल निगल जाएगा। ऐसा ही है? अरे मेरे आका, मैंने आरजू कभी नहीं की। यह आरजू कम नहीं है। अरे मेरे आका, मुझसे क्यों गुस्ताखी करवाना चाह रहे हैं? मुझे क्या जन्नत से निकलवाना है? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक? वो आदम थे, क्या तुम उनमें से हो? अशार और खिलाफत का गहरा ताल्लुक है। सैयदुल मुरसलीन ने इसे हिकमत करार देकर जाहिलियत की घटिया मज़ामीन से निजात दिलाई, पर यजीद ने अपने फिस्क व फुजूर और शहवत व हवस से दोबारा उसे जाहिलियत में पहुंचा दिया। अजीब यह है कि आज के ज़माने में भी शेर में अगर सुन्नत रसूल बयान हो तो उसका नतीजा है खुदाई शायरी का दर बदर फिरना। और उससे भी ज़्यादा अजीब यह है कि ये सब दीन के नाम पर हो रहा है। वो तमाम कबीले जिन्हें हम जानते और पहचानते हैं, यमनी कबाइल, बनी बकर, बनी मुज़र, वो सब के सब इनके बहाए गए खून में शरीक हैं, बिल्कुल उनकी तरह जिन्होंने ऊंटनी के कत्ल में कातिलों का साथ दिया और वो भी इस जुर्म में शरीक हैं। उन्हें कत्ल कर डाला, कैदी बना लिया, जला दिया और लूट लिया। और रोमियों के साथ जंग में जो बेदीनों के साथ किया जाता है, तुमने उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बर्ताव किया। बनु उमैया के ये गुनाह तो फिर भी नजरअंदाज किए जा सकते हैं, लेकिन बनी अब्बास के पास तो कोई बहाना नहीं है। वो तो उनके नजदीकी रिश्तेदार थे, उनकी मदद करने के बहाने से वो खिलाफत तक पहुंचे थे।
ये बताओ, क्या इस तरह इससे पहले कभी पेट भर कर खाया था? पेट का असीर शेर कब होता है? रोज तुम्हारे पेट पर 1000 दिरहम खर्च करेंगे ताकि महसूल की वसूली में हाथ ना कांपे। वजीर का हाथ कांपना नहीं चाहिए। 1000 दिरहम मेरे मौला? ये तो पूरे शहर का खाना है। तुम भी एक शहर हो, आदमी की सूरत में। क्या करूं मेरे अमीर, ये वजीर अपने पेट का गुलाम है। अगर कोई शख्स मेरे सामने खाना ले जा रहा हो तो मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक ये ना जान लूं कि इसमें क्या है। मशहूर है कि नींद की दुनिया में सूंघने की ताकत बेअसर है, लेकिन मैं तो नींद की दुनिया में भी लजीज खानों और मिठाइयों का असीर हूँ। भुना हुआ जिगर और मुर्ग बिरयानी और वो मेमना जो आग पर हल्के हल्के घूमता है ताकि पूरी तरह पक जाए, बस लुत्फ आ जाए। वो लुत्फ आका जिसके आगे हर लुत्फ फीका है। खाने की खुशबू का लुत्फ, क्या ही दिलनशी खुशबू आती है, और वो लुत्फ ही अलग है जो इन दो खानों से मिलता है। अगरचे दोनों खानों की बात ही अलग है। फिर बाजार के दूसरी जानिब से ईरानी कबाब की खुशबू मेरे दिल को ईरान ले जाती है। और आका, जब इसमें मिठाई की खुशबू का इजाफा हो जाए, गाजर के हलवे की खुशबू, रबड़ियां और इमरतियां, भाई वाह। लेकिन अचानक मेरी बीवी मुझे मीठी नींद से जगा देती है और वो सारी खुशबुएं और लज्जतें सब के सब खत्म हो जाती हैं मेरे आका। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसी खुशबू के पीछे नींद में भी मैं अपने घर के बावर्ची खाने में ही रहता हूं मेरे आका। तो मैंने सही सुना है अबू खालिद। लोग कहते हैं कि तुम्हारा वजीर रोजाना बाजार जाता है और टोकरियों के साथ वापस आता है महल में। किसी ने मेरी शिकायत की है आपसे मेरे हुजूर? भला किसी की मजाल कि तुम्हारी शिकायत करे? फिर आपको ये बात कैसे पता चली है? क्या आप मेरे साथ थे? साथ नहीं तो क्या हुआ? अक्ल तो है ना मेरे पास। क्या तुम्हें नहीं लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे आका। मैंने कभी बाजार से मुफ्त सामान ना मंगवाया है और ना ही कभी मंगवा सकता हूँ। लिहाजा बाजार के लोग कहते हैं कि खलीफा के वजीर से पैसे लेना मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं भरी हुई टोकरियां लेकर वापस आ जाता हूँ और मेरे पास आपसे छुपाने के लिए कुछ भी तो नहीं है मेरे आका। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ऐ अबा अब्दुल्लाह, आप पर सलाम हो। मैं आपसे अहद करता हूं कि जहाद में आपकी पैरवी करूंगा, चाहे इस राह में मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मेरी मदद कीजिए। जिस तरह आपने करबला में शहीद ताई का हाथ थामा था और उसकी मदद की थी, मैं अपनी तमाम जिंदगी क़याम के लिए इमाम की तलाश में ही गुजारूंगा और हरगिज आराम से नहीं बैठूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? हुर,
हुरताई। हम अलवी हैं और हमने जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग किया है। मैंने खुद से अहद किया था कि जब भी जुल्म के खिलाफ अलवी हजरात कयाम करेंगे तो मैं पीछे न रहूंगा और मेरी भी शमशीर उनके हमरा होगी। फिर तो हमारा रास्ता एक ही है। कितनी जल्दी मेरी हाजत पूरी हो गई। अलवियों ने कयाम के लिए अपनी तलवारें खींच ली हैं, लिहाजा मैं भी अपने अहद पर कायम हूं, चाहे इस मकसद के लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बताओ कमांडर, क्या हुआ? मैं आपसे माफी चाहता हूं मेरे सुल्तान। मुद्दे पर आओ। अलवी हुजूर। क्या हुआ? फिर उन्होंने कयाम किया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कहां? जुनूबी इराक की तरफ। इराक? फिर से? अब तक मेरी तरह किसी दूसरे खलीफा ने क्या उनकी खिदमत की है? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो कि हमने उनके लिए क्या किया? जी बिल्कुल जानते हैं कि आपने फिदक वापस कर दिया, और ये भी जानते हैं कि आपने खिलाफत का सरकारी लिबास सब्ज कर दिया। इमारत, क्या तुम उन सबको भूल गए? हरमैन शरीफैन और यमन भी उनको दे दिया। इन सब चीजों से सबसे ज्यादा अहम यह है कि आपने अली इब्ने अबी तालिब को नबी के बाद तमाम इंसानों से सबसे अफजल ऐलान किया। इसके बावजूद सर उठा रहे हैं। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। अगर आप इजाजत दें तो हम 10,000 सिपाहियों के साथ उनसे जंग कर सकते हैं। फतह यकीनन हमारी होगी। हुक्म देता हूं कि उनका सर कुचल दो। जैसा आपका हुक्म। ए खलीफा के सिपाहियों, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने खलीफा के खिलाफ कयाम किया और बैत तोड़ डाली, लिहाजा ये दीन से खारिज हो चुके हैं और हर एक फर्द इनका काफिर है, तो इसलिए इनका खून बहाना जायज है। बल्कि खलीफा के हुक्म से वाजिब है तो इनमें से किसी पर रहम नहीं करना और सबको तातह कर दो जो कोई भी हमारे रास्ते में आए। ए गासिब खलीफा के सिपाहियों, जान लो, अब्बासियों ने अमवियों की तरह मुसलमानों की खिलाफत को गज़्ब किया है और अपने जुल्म सितम से इस्लाम को बदनाम किया है। लेकिन अलवी, अली इब्ने अबी तालिब और हुसैन इब्ने अली की तरह जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। ए मेरे इज्जत वाले रब, अपने वादे के मुताबिक 2 नेकियों में से एक नेकी कामयाबी या शहादत अता फरमा। अल्लाहु अकबर।
سمجھتا تھا کافی زیادہ، لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہے بھائی، چلو۔ انہیں نیست و نابود کر دو۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی۔ میرے بیٹے ہور کی کوئی خبر ملی؟ میں بہت فکر مند ہوں اس کے لیے۔ ابھی جاتی ہوں، ان کے دوستوں سے پوچھتی ہوں، میرا بھی دل گھبرا رہا ہے۔ جیتی رہو میری بیٹی۔ خدا اس کی حفاظت فرما اور خیر و عافیت سے ہمارے پاس پلٹا دے۔ بار الہ، خوف و دہشت سے اہل حق کا دم گھٹ رہا ہے، اور واقعی یہ لوگ بڑی سختی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور تو اے پروردگار اپنے بندوں پر اور جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں ان پر مہربان ہے۔ تو ان کی دعاؤں کو پورا کرنے اور ان کے حالات کو جلد بہتر کرنے والا ہے۔ پروردگارہ، محمد اور ان کی آل پر درود بھیج، اور ہم پر وہ مدد جس کے بعد خواری نہ ہو،
और ऐसी कामयाबी जिसे बातिल खत्म न कर सके। जल्द अज जल्द भेज और हमें वो जगह अता फरमा जहां तेरे अहबाब सुकून पाए और तेरे दुश्मन मायूस हो जाए। ऐसी सरजमीन जहां तेरा दीन पायदार हो और तेरा हुक्म वहां नाफिज हो और तेरे दुश्मन वहां जलील हो। बारे इलाहा फौरन हम पर अपनी रहमत का साया और अपने दुश्मनों पर अपने कहरो गजब का साया डाल दे। बारे इलाहा हमारी नुसरत फरमा और हमारी इमदाद कर। देखिए बाबा जान, हुर आ गए। बिल आखिर आप आ ही गए हुर। हुर, ये क्या हो गया है? खुदाया मेरी मदद फरमा, मैं तुझसे अपने शोहर की हिफाजत मांगती हूँ। न जाने कितने कयामों में तलवार चलाकर दुश्मनों को शिकस्त दी है। मैं ये जुल्म सितम देखकर थक चुका हूँ। या मेरी जान ले ले या मुझे रास्ता दिखा दे। और उठो। ये कैसी आवाज है जो मैं सुन रहा हूँ? ये कैसी सरगोशी है? ये कौन है जो मेरी जिंदगी चाहता है? या अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आप भी सलामत रहे बाबा जान। अल्लाह तुम्हें सब्र और तुम्हारे शौहर को सेहत अता करे बेटी। क्या उन्हें अभी होश नहीं आया? अभी भी बेहोशी का आलम है। हर थोड़ी देर में बड़बड़ाता है लेकिन बेमाने। कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है और उसे बार बार जगा रहा है। वो बेहोशी में क्या कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम उसके सराहने बैठो, शायद कुछ समझ सको। शायद तुम उसे इस परेशानी से बाहर निकाल सको। उसे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। या रब्बल आलमीन, हुर के सिवा मेरा कोई नहीं है। वो मेरी जिंदगी और खुशी है। उसे मुझसे कभी ना छीनना ए अरहमुर राहिमीन। आपको इस हालत में देखकर मेरा तो दम निकल गया था। एक अजीब आवाज ने मुझे बचा लिया सलमा। कैसी अजीब आवाज हुर? मैं वहां लड़ रहा था कि उन जालिमों ने क्या हाल बना दिया है आपका। सलमा, मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ? 3 दिन से। लेकिन फिर अचानक एक सवार आया। हम लोगों को शिकस्त हो चुकी थी। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं लाशों के दरमियान पड़ा हुआ था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर अचानक मैंने खुद को घोड़े पर सवार पाया। मैं उस वक्त बहुत कमजोर हो चुका था। महसूस होता था कि मैं रास्ता तय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक आवाज मुझे उम्मीद दिलाती थी। वही आवाज जिसने मुझे लाशों के दरमियान से अपनी तरफ खींचा और घोड़े पर सवार होने की हिम्मत दिलाई। ऐ काश ऐसा ना होता सलमा। ऐ काश मेरा घोड़ा मुझे वापस ना लाता और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। कुछ भी नहीं बचा था। मेरे और मौत के दरमियान
बस एक सांस का फासला था और मेरी कभी ऐसी हालत नहीं हुई थी। और मुझे नहीं मालूम कि ये आवाज कहां से और क्यों आई। कयाम के लिए या किसी और शिकस्त के लिए खुदा जाने। अगर मेरा नसीब शहादत है तो फिर मुझे इसी कयाम में क्यों नसीब न हुई। जिस आवाज ने मुझे जिंदगी बख्शी उसका क्या मकसद था पता नहीं सलमा। मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हमेशा कयाम और शहादत की फिक्र में क्यों रहते हैं। ये ऐसी चीज है जो मेरी तकदीर से जुड़ी हुई है। काश मैं तुम्हें समझा पाता। उस वक्त तुम्हें मेरी हालत का पता चलता। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी हालत बेहतर है। तुम क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुमसे ऐसा क्या कहा था कि तुम मौत के मुश्ताक हो गए? बता दो बेटा। काश मैं ऐसा कर सकता। काश मैं कर सकता। वो लोग बहुत दलेर थे, बहादुरी से डटे रहे, लेकिन आखिरकार हमने उन्हें शिकस्त दे ही दी मेरे हुजूर। अब क्या किया जाए? खुदा जानता है कि मैं अलवियों के कत्ल पर राजी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। गोया वो खुद अपने हाथों खुदकुशी कर रहे हैं। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया हुजूर। हमने उन्हें अमान दी लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। ए खैमे में रहने वाले, क्या वक्त मिल सकता है आपका? मैं जवाब देता हूँ। कहीं खलीफा के सिपाही ना हो। तुम फिक्र मत करो सलमा। सलाम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे अली बिन महजियार कहते हैं। मेरा काफिला एवाज से आ रहा है। दरअसल हम जानना चाहते हैं कि मदीना यहाँ से कितना दूर है। आप 2 दिन में मदीना पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब ज्यादा सफर नहीं ऐसा बचा ही है। आज रात यहीं आराम करें, कल सुबह निकल जाइएगा। आपको जहमत होगी मेरे भाई। कोई जहमत नहीं। आज रात हम यहीं रहेंगे। आ जाइए। सलमा, मेहमान आए हैं, थकन दूर होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप तकलीफ देने के लिए माजरत चाहते हैं। अरे नहीं, आप भाई से रहमत है। मेरे बेटे, क्या तुमने मेहमानों में कोई अजीब सी चीज नहीं देखी? उन्हें काफी पुरवकार पाया, खासकर रईस कारवां इब्न महजियार को। मैंने आज तक उन जैसी शख्सियत नहीं देखी। उनका बर्ताव पैगंबर के असहाब की तरह है और उनकी इबादत भी। अभी तक मैंने जितने भी काफिले देखे उनमें से ये अलग है। इनका सामान भी इनके काफिले से बहुत ज्यादा है। सामान की रखवाली भी बाखूबी कर रहे हैं, खास तौर पर इब्न महजियार जिनके बारे में तुमने बताया। क्या पता उस सामान में कोई कीमती चीज है मेरे बेटे? मैंने भी गौर किया है। उनमें से किसी से पूछा तो जवाब दिया कि उनके सामान में एक अहम अमानत है जिसे एक अहम शख्स के लिए मदीना ले जा रहे हैं। शायद दारुल खिलाफत के लिए कुछ तहाइफ ले जा रहे हों। लेकिन ये हुकूमती कारिंदों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। अजीब सूरत हाल है। एक तरफ जहां लोग कोड़ों के जोर पर हमसे महसूल वसूल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये ढेर सारा माल खुशी खुशी किसी और के लिए ले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर उम्र रही तो रसूल अल्लाह के रोजे पर आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, खैर से जाएं और खैर से वापस आएं। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह आपकी हिफाजत। खुदा हाफिज। खैर से जाएं और खैर से वापस आएं।
हो क्या गया है आपको? दोबारा सफर क्यों कर रहे हैं? वादा किया था आपने मुझसे, याद नहीं है? वादा किया था आपने कि मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर से बेकरार हो गया हूँ सलमा। भूल गए कि आपने मुझसे वादा किया था कि दोबारा कयाम में हिस्सा नहीं लेंगे। कयाम के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। परेशान मत हो सलमा। मुझे बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं और कब तक आपकी दूरी सहूंगी मैं? मुझे उस काफिले के सालार से मिलना है। क्यों? मेरे ख्याल से ये वही इमाम हैं जिनकी इताअत करने का मुझे हुक्म हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहीं ठहरे, मैं बस अभी आता हूँ। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा मेरे भाई। सब्र करो, हर सवाल का जवाब है यहाँ, क्योंकि मैं भी इसी घर का एक शागिर्द हूँ। शागिर्द हो तुम? बिल्कुल दुरुस्त सुना तुमने।